Hello students, welcome back to my channel. Today we will be continuing with chapter number 2. We have stopped in question number 3. Today we will be starting from question number 4 and see how many questions we can solve, because I don't want to make this video very long. So before taking any further time, let's start. But before starting, I have a small request to all of you. If you're liking this video, then positively give a like to it. If I don't get a like from your side, I will think this videos you're not liking and I will stop making any further videos. So next time, once you see the video, don't forget to press the like button. With this, let's start. This is your question number 4. In this a to the power q, a to the power r and whole bracket p, this equation you have to prove is equal to 1. Now, always remember in these questions like 4, 5, 6, 7, there is a common trend. What is the common trend? Means if you have to prove it to be 1, always remember any number if we have in power 0, we get 1. So definitely ये बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं पावर 0 आए. मान लो a का पावर 0 that is also 1, x का पावर 0 that is also 1, x, y, z का power 0 that is also 1. So we know if we go correctly, if our procedure is right, if you proceed in the right direction, power में 0 आना है. Whenever you get something in the right hand side as 1, think power में 0 आएगा and you can easily solve it. So with this, let's start. There are 4 questions in question number 4. 1, 2, 3, 4. Right? In 1 and 2, in your book you will see the right hand side they have not given equal to 1. So that is a printing error. So positively put equal to 1. What you have to do? They are asking you to prove it. Prove it means this left hand side equal to को बेटा इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इक्वल टू उस साइड वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं. इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है. So we will, whenever we have a proof question, we will be starting with the left hand side. So left hand side, what we have, this whole thing is in the left hand side, a to the power q by a to the power r, whole bracket p into a to the power r by a to the power p, whole bracket q into a to the power p by a to the power q and whole bracket r. This we will not write equal to 1 because that we have to prove. So we know in division when base is same, then power get subtracted. I hope you remember when the base is same and there is a division sign in between, then the power gets minus. So we do the same thing here. A, the one which is there inside the bracket, numerator minus denominator, always remember this. So बेटा इसके जगह में मैंने ये लिखा, लेकिन देखिए ब्रैकेट के बाहर में एक p है, सो इसको इग्नोर नहीं करना है. इनटू a पावर r माइनस p, ब्रैकेट के बाहर में क्या है बच्चों q, इनटू a का पावर p माइनस q और ब्रैकेट के बाहर में क्या है r. नाउ इफ यू सी ये पावर में q माइनस r और एक ब्रैकेट है, दैट मींस p विल बी मल्टीप्लाइड बाय दीस टू. एक के साथ नहीं करना है, दोनों के साथ ही करना है. a टू द पावर पहले p जब q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या होगा pq माइनस p जब r के साथ मल्टीप्लाई होगा pr इनटू, ठीक वैसे ही q जब r के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा qr माइनस p जब q के साथ मल्टीप्लाई होगा pq इनटू a p इंटू r pr माइनस माइनस q इंटू r qr. तो अब बच्चों देखो तीनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, तो बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर क्या होता है बच्चों प्लस हो जाता है. रूल नंबर 1. सो वी विल ऐड द पावर्स. एक ही बेस रखना है और पावर को प्लस कर देना है. तो पहले क्या है बच्चों pq माइनस pr प्लस फिर क्या है qr माइनस pq, फिर क्या है बच्चों pr माइनस qr. ठीक है, ये मिल गया हम लोग को. अब देखो pq प्लस pq माइनस pq गॉन, माइनस pr प्लस pr गॉन, प्लस qr माइनस qr गॉन. तो ऊपर क्या आ गया बेटा 0. मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इक्वल टू कोई भी नंबर को पावर में 0 है तो दैट इज 1.
So it is equal to right hand side, hence proved. So this is our question number 2 of 4. We will follow the same rule. ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूफ करना इक्वल टू 1. सो वी विल प्रोसीड विद द लेफ्ट हैंड साइड. बेटा मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो फिर बहुत जगह लगेगा. वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट. बेस सेम है तो पावर क्या होता है बेटा? माइनस हो जाता है. तो लेफ्ट हैंड साइड में x ऊपर से नीचे माइनस होता है. न्यूमरेटर का पावर पहले लिखना है, फिर डिनोमिनेटर का पावर लिखना है. और ब्रैकेट के बाहर कितना बच्चों? m प्लस n. फिर इधर x टू द पावर n माइनस n, n प्लस n. फिर x टू द पावर n माइनस n एंड देन n प्लस n. देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को पहले लिखना है, माइनस डिनोमिनेटर का पावर. अब देखो बेटा यहां पर m minus 1 will be multiplied by m plus n. Likewise n minus l will be multiplied by n plus l. तो इसमें बेटा एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको. देखिए a plus b into a minus b equal to a square minus b square. अब a plus b into a minus b है, इसको आप a minus b into a plus b लिख सकते हो. doesn't matter because 2 into 3 या 3 into 2 वैल्यू चेंज नहीं होता है. तो ये बेटा हम लोग इधर फॉर्मूला लगा देंगे. क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. इधर a कितना है? m है और b कितना है? n. सो वी विल बी पुटिंग दैट वैल्यू x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. लाइकवाइज इधर भी x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इधर a कितना है? n है और b कितना है? l है. देन x पावर l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. अब तीनों का बेस सेम. बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन सर साइन देख नहीं रहा है, मैंने बताया था आपको. बीच में अगर कोई साइन ना दिखे तो उसको मल्टीप्लिकेशन समझ लेना है. तो बेटा बेस जब सेम होता है पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा. प्लस करते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. अब देखो m स्क्वायर प्लस माइनस गॉन, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस गॉन, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस गॉन. सो ऊपर कितना बचा? 0. कोई भी नंबर के ऊपर में अगर 0 होता है दैट बिकम्स 1. दैट इज आवर राइट हैंड साइड. सो इट्स वेरी इजी टू प्रूव. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 4. वी विल फॉलो द सेम रूल. लेफ्ट हैंड साइड लेना है बेटा. मैं बार बार लेफ्ट हैंड साइड दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है. इसमें क्या करना है? सेम व्हाटएवर वी आर डूइंग. बेस देखिए सेम है, देयर इज अ डिवीजन साइन, तो पावर माइनस हो जाएगा. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा into m plus n minus l. then x n minus l. ये मैंने इसके जगह में देखा, लेकिन देखिए ब्रैकेट के बाहर में जो है इसको भी लिखते चलना है. ठीक है बेटा. अब क्या करेंगे? अब देखिए ये दोनों ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना है. ये दोनों ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक एक करके पहला m को हम लोग ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर माइनस n है, माइनस. सो खास ध्यान रखना माइनस का साइन माइनस n, फिर ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए करते हैं. x पावर n इंटू m, m स्क्वायर प्लस m इंटू n, mn माइनस m इंटू l, ml. ये m ये तीनों से मल्टीप्लाई हो गया. अब बारी है n का, माइनस n का. माइनस n इंटू m माइनस nm. फिर माइनस प्लस माइनस n इंटू n, n स्क्वायर. फिर माइनस माइनस प्लस n इंटू l इज nl. ये पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन हुआ. दूसरे वाले का कितना हुआ? n इंटू n, n स्क्वायर प्लस n इंटू l nl माइनस n इंटू m nl. ये n से होगा, फिर माइनस l से करना, तो माइनस l इंटू n माइनस ln, l इंटू प्लस l, सो प्लस माइनस माइनस l इंटू l, l स्क्वायर. तो l इंटू m माइनस माइनस प्लस l इंटू m ln. ठीक है बच्चों. तीसरा वाला कैसा होगा? सेम ऐसे लिखेंगे. x l पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा. l इंटू l इज
एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एम इज एल एम माइनस एल इंटू एन इज एल एन, फिर माइनस एम इंटू एल माइनस एम एल, फिर माइनस एम स्क्वायर एम इंटू एम इज स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस एम एल। ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन बहुत सिंपल है बेटा, देखने में इतना बड़ा लग रहा है। अब क्या करना है, बेस देखिए तीनों का सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या करना है, पावर को हम लोग को प्लस कर देना है। तो चलिए पावर को प्लस करते हैं। देखिए बेटा ये प्लस करके ये सबको मैंने सिर्फ पावर में प्लस कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। ये तीनों मिला के इतना लंबा हो गया है, डजन मैटर। अब एक बार लाइन से हम लोग इस तरफ से इस तरफ पढ़ेंगे। पावर में एम स्क्वायर, इधर आप कहीं एम स्क्वायर दिख रहा है बेटा? यस, ये देखिए प्लस एम स्क्वायर और उधर माइनस एम स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए। अब देखिए एम एन और देखिए एन एम और एम एन एक ही होता है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, दोनों का वैल्यू एक ही होता है, तो ये दोनों कट गए। अब माइनस एम एल, अब देखिए एम एल और ये है एम एल या एल एम, ये रहा, ये दोनों कट गया। फिर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन एल प्लस, इधर भी प्लस है लेकिन कटेगा नहीं, तो एन एल, एल एन हो या एन एल हो दोनों सेम है, ये दोनों कट गए। अभी एन एल इधर है और एक एन एल कहाँ है, ये रहा, कट गए। फिर माइनस एन एम प्लस एन एम, ये देखिए दोनों कट गए। अब क्या बचा बेटा, एल स्क्वायर प्लस माइनस कट गया। अब देखिए एल एम माइनस एल एम कट गया। तो बेटा पावर में कितना आया, x पावर 0 दैट इज 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4। इधर भी हम लोग को सेम काम करना है, वहां तो हम लोग को पावर को माइनस करना पड़ रहा था, इधर देखिए तीनों ए बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली पावर हम लोग को प्लस करना है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं दो एक चीज बताना चाहता हूं। नाउ सपोज x माइनस वाई है और y माइनस एक्स है, ये दो लीनियर इक्वेशन है। अगर मुझे इसको भी x माइनस 1 में कन्वर्ट करना है तो बेटा ये कैसे करेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए 2 प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 माइनस 7 को क्या हम लिख सकते हैं, माइनस 7 प्लस 2। वैल्यू सेम ही होगा, इसको इधर लिखो या इसको उधर लिखो, विद साइन इधर लिखा है। तो क्या हम लोग इसको माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, इट इज ऑल सेम। माइनस एक्स को पहले लिखा, प्लस वाई को बाद में लिखा। अभी देखिए इसमें से अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस 1 कॉमन चला गया, तो मैंने बताया था जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं बेटा साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखिए x के साथ माइनस था वो प्लस हो गया, कुछ सामने नहीं लिखा मतलब प्लस, और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। तो बच्चों y माइनस एक्स को अगर मुझे x माइनस वाई बनाना है तो हम लोग को माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है, इतना याद रहेगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए x माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसको अगर मुझे x माइनस जेड बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, माइनस वाले को सामने लिखिए पहले, माइनस एक्स प्लस जेड और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। तो x ये देखिए माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम होता है, सिर्फ माइनस 1 कॉमन निकालना है, इतना याद रखिए। एक और चीज x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, सपोज ये आपको दिया हुआ है, और एक नंबर है y माइनस एक्स और z माइनस वाई। अगर मुझे इसको इस फॉर्मेट में बनाना है तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, y माइनस एक्स, x माइनस वाई बन जाता है। तो मैंने पहले वाले से क्या कॉमन लिया बेटा, माइनस 1, तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई बन गया। ये मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ अगर मुझे y माइनस जेड बनाना है, z माइनस वाई को, तो क्या करेंगे बेटा, अगेन माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस जेड। ये अभी इस इक्वेशन में देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 1,
माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, सो ये +1 हम लोग लिखते रहेंगे, सो इट विल बिकम x माइनस वाई इंटू वाई माइनस z। जब दो बार हम लोग -1 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, इट इज द सेम। तो बच्चों देखो a पावर 1 बाई x माइनस वाई इंटू 1 बाई x माइनस z, फिर 1 बाई y माइनस z इंटू 1 बाई y माइनस x, फिर इंटू a पावर 1 z माइनस x इंटू 1 बाई z माइनस y। अब देखिए बेस हम लोग एक लिखेंगे, पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में हमने आप लोगों को बताया था बेटा स्ट्रेट स्ट्रेट होता है, मींस न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो काट दो, यहाँ कुछ कॉमन का सवाल नहीं, तो 1 1 से 1 बाय ये दोनों मल्टीप्लाई, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। अब देखिए हम लोग को जो x माइनस वाई है इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए एक y माइनस एक्स है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, नीचे y माइनस जेड इंटू y माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, x माइनस वाई माइनस 1, एक मल्टीप्लाई बाहर है, फेयर इनफ। अब इधर देखते हैं a, तो अभी क्या है 1 बाई जेड माइनस एक्स, तो इधर से पहले कुछ है, देखिए इधर x माइनस जेड, लेकिन यहाँ पर दिया z माइनस 1, तो इसको अगर मैं करेक्शन करूं x माइनस जेड करूं तो बेटा क्या होगा, पहले देखिए ऊपर ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं। अब देखिए इसमें -1 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस जेड हो गया, नो प्रॉब्लम, ये सब मल्टीप्लिकेशन में होता है। अब देखिए z माइनस वाई, इधर कहीं है z, देखिए y माइनस जेड है, तो इसको मुझे y माइनस जेड करना है, तो इधर से भी मैं क्या करूंगा, एक -1 कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस जेड। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखिए। बेस से एक और स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। a 1 बाई x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। अब देखिए माइनस a का पावर में ये माइनस है, तो -1 बाई y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, फिर पावर में। अब देखिए -1 इंटू -1, मैंने बताया था दो बार जब कॉमन निकलता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इट विल बिकम 1 बाई एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अभी देखिए सबका बेस x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, अब सब सेम हो गए। अभी हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अभी क्या करना है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था जब बेस सेम होता है पावर प्लस हो जाता है, तो चलिए बेस को सेम रखते हैं, पावर प्लस कर देते हैं। 1 बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, इधर देखिए माइनस है, माइनस 1 बाई वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, फिर इधर क्या है प्लस का साइन, तो प्लस 1 बाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस, तो ये आ गया हम लोगों के पास। सर ये तो लंबा चौड़ा कुछ आ गया, क्या करेंगे सर, ये तो प्लस माइनस कैसे होगा, नहीं होगा, लेट्स सी। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। सर इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, देखते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूं और आपको आराम से समझा रहा हूं, दैट इज द रीजन मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो 3 नंबर क्या है, x माइनस वाई ये है, दूसरा क्या है y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, तीसरा क्या है बेटा x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ये 3 है। अभी एलसीएम निकालते कैसे हैं याद है, तो सबसे पहले हम लोग इसको x माइनस वाई से डिवाइड करते हैं। ये कुछ ऐसा है, आपको मैं बता दूं, x माइनस वाई
x माइनस जेड डिवाइड, अभी वाला डिवाइड दिमाग को मत लगाना, x माइनस वाई। ये देखिए ये कट गया, ये बचा, तो इससे ये कट गया, क्या बचा बेटा x माइनस जेड। पहला वाला में ये, अब दूसरा वाला में x माइनस वाई है सर, दिख रहा है ना, x माइनस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा y माइनस जेड। अब तीसरे वाले में x माइनस वाई है नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। एलसीएम में हम ऐसे ही करते थे ना। अभी नेक्स्ट स्टेप, इसे डिवाइड करेंगे, इसी को ले लेते हैं, x माइनस जेड डिवाइडेड बाय x माइनस जेड, 1 बचा। इधर y माइनस जेड है, x माइनस जेड तो है नहीं, तो इसको एज इट इज लिखना है। अब इस पूरे को x माइनस जेड नीचे आ गया, x माइनस जेड कट गया, तो क्या बचा बेटा y माइनस जेड। अभी लास्ट एलसीएम कब तक करते रहना, जब तक नीचे 1 ना आता है। अब देखिए y माइनस जेड, तो y माइनस जेड को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 तो था, 1 सा y माइनस जेड डिवाइड पर y माइनस जेड कट जाएगा, 1 बचेगा, अगेन कट जाएगा, 1 बचेगा। तो अभी क्या आया है बेटा एलसीएम कितना आ गया, फिर ये तीनों को मल्टीप्लिकेशन, तो एलसीएम आएगा x माइनस वाई इंटू x माइनस जेड इंटू y माइनस जेड। ये समझ में आ गया। तो बेटा व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में इनका एलसीएम हम लोगों ने अभी निकाला, कितना आया x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड, यही आया था। अब देखिए इन दोनों को जब इससे डिवाइड, पहले क्या करते हैं डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, तो इसके नीचे जब हम लोग x माइनस वाई और x माइनस जेड रखेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या y माइनस जेड। चलिए लिखते हैं y माइनस जेड, फिर माइनस का साइन ध्यान रहे बेटा माइनस, अब जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। अब देखिए y माइनस जेड से y माइनस जेड कट गया, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट किया, क्या बचा x माइनस जेड, फिर जब प्लस का साइन प्लस, x माइनस जेड से x माइनस जेड कट गया, y माइनस जेड से y माइनस जेड, क्या बचा x माइनस वाई। तो चलिए अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, a पावर y माइनस जेड, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस जेड, फिर प्लस एक्स और माइनस वाई, और नीचे जो था उसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए y प्लस वाई माइनस जीरो, z प्लस जेड माइनस जीरो, x प्लस एक्स माइनस जीरो, तो कितना है बेटा a टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई ये होल थिंग। और हम लोग को पता है बच्चों कोई भी चीज अगर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर कितना आता है बेटा 0 ही आता है, तो ये बन जाएगा a टू द पावर 0 which is equal to 1 which is equal to राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ x plus z is equal to 2y and b square is equal to ac, then we have to prove that a to the power y minus z, b to the power z minus x and c to the power x minus y is equal to 1, ये प्रूफ करना है। तो दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड ये 1 के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो बेटा ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये दो से हम लोगों को कुछ वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एक हिंट इस क्वेश्चन में दिया है, देखो a इंटू सी, दैट मीन्स इधर a है इंटू सी, a और c को क्या हम इंटू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बेस भी अलग है और इंडेक्स मतलब पावर भी अलग है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर दो नंबर का बेस सेम हो, x प्लस वाई और इधर y प्लस जेड सपोज, तो क्या होगा बेस सेम रहेगा, अब ये पावर प्लस हो जाएंगे। एक ये कंडीशन बताया था। दूसरा अगर मान लेते हैं एक और कंडीशन, बेस अलग अलग है, तो बेस अगर अलग है मैंडेटरली पावर सेम होना है, तभी इसमें कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ए एक्स प्लस वाई, ये आपको याद है, दैट मींस ये एक्स प्लस वाई ए के ऊपर भी है सी के ऊपर भी, इसी को हम लोग छोटा फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये AC इस फॉर्म में आएगा, मींस A का पावर और C का पावर को हम लोग को सेम करना है, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं।
पहला हिंट्स यहां से मिल गया। दूसरा हिंट्स क्या है बेटा, ये y माइनस जेड और x माइनस वाई को सेम करना है, तभी तो इसका पावर सेम होगा। उसके लिए इधर कुछ इक्वेशन दिया है, इसको तोड़ मरोड़ के हमको उसको सेम करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ, x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। क्या हम इसको x प्लस जेड इक्वल टू 2y मीन्स y प्लस y इज इक्वल टू 2y। 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू 2x इंटू x इंटू x क्या हो जाता है, x स्क्वायर। तो इधर 2x है मीन्स 1x प्लस 1x दैट इज 2x। लाइकवाइज 2y के जगह में मैंने y प्लस y लिख दिया। अभी हमें क्या चाहिए, x माइनस y और y माइनस z को सेम करना है। तो x माइनस y, ये y को उठा के हम लोग इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। x के बगल में माइनस y लगा दिया, बीच में इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। इधर पहले से क्या है बेटा, y। ये जो प्लस z है इसको उठा के हम उस साइड ले जाएंगे माइनस z। तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, ये। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो इसको 1 मान लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, फटाफट देखो, a टू द पावर y माइनस z इंटू b टू द पावर z माइनस x इंटू c टू द पावर x माइनस y। तो a टू द पावर y माइनस z इंटू b टू द पावर z माइनस x इंटू c टू द पावर x माइनस y। अभी हम लोगों ने कितना निकाला, x माइनस y किसके बराबर है, y माइनस z। तो x माइनस y की जगह में हम लोग y माइनस z लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। लिखना फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम लोग इसको डिराइव किए हैं, तो इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा, मैंने बताया था a और c इन दोनों का पावर अब देखो सेम हो गया, इसका पावर अलग है। सो विल नॉट टॉक अबाउट दिस। ये दोनों का पावर अगर सेम है, बेस अगर मल्टीप्लिकेशन है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ac होल पावर y माइनस z, और इधर क्या पड़ा हुआ है, b z माइनस x, ठीक है। तो ac होल पावर y माइनस z इंटू b होल पावर z माइनस x। तो अभी देखो बच्चों, ac किसके बराबर है, b स्क्वायर। हमने बताया था ये जो दिया हुआ है ये एक हिंटर है, तो दैट मींस मैं ac की जगह में b स्क्वायर लिख सकता हूं, यस। सो ac की जगह में मैंने सिर्फ b स्क्वायर लिखा है, बाकी जो चीज जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या करना है बेटा, ये 2 इंटू ये दोनों के साथ, ये 2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो b का पावर कितना हो गया, 2y माइनस 2z इंटू b z माइनस x। अभी देखिए बेस दोनों का क्या है, सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। तो b 2y माइनस 2z प्लस z माइनस x हो गया। अब क्या करें, अब यहां पर देखो 2y का एक वैल्यू दिया हुआ है, कितना है बेटा, x प्लस z। तो क्या हम लोग 2y की जगह में x प्लस z लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। सो ये जो 2y है इसके जगह में मैंने x प्लस z लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, बाकी जो जैसा है वैसे लिखते चले जाओ। इक्वल, अब देखो x प्लस x माइनस गया, z प्लस सॉरी z प्लस z प्लस z प्लस z 2z माइनस 2z इज 0, तो b टू द पावर 0 आ गया, दैट इज 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। सो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो हियर बिकॉज़ इट्स बिकमिंग वेरी लेंथी, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो। सो कल बेटा हम लोग 6 7 8 9 के 7 क्वेश्चन है 1 to 7, वो कल पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। So before going, once again, if you have not subscribed the channel, don't forget to subscribe it, press the bell icon, ताकि next time मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। And lastly, don't forget to give a thumbs up if you like the video. Take care kids, God bless.